Now we are going to study national and international NGOs which are working for protection of environment, जो environment protection के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, तो there are लॉट ऑफ एनजीओस, बहुत सारे एनजीओस हैं जो इसके लिए काम करते हैं. ठीक, अब आप कुछ का हम इसमें से एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक, द फर्स्ट वन इज, मोस्ट ऑफ यू हैव मस्ट लिसन दिस नेम. इज इट विजिबल? Yes, sir. What I have written? It is Greenpeace. Greenpeace. शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा. सुना है? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक, तो it is one of the NGOs which are focusing their activities on environmental issues or environmental causes. So that's why we call them or those environmental NGOs. Environmental issues को वो relate करते हैं. These are subject to environmental issues. That's why these are known as environmental NGOs. Okay, so Greenpeace is an international organization which is working around 40 countries, 40, around 14 countries across Europe, Asia, America and Pacifics. इन सारे एरियाज में ये काम कर रहा है. ठीक, it is campaigning against environmental decays or degradation since 1971. It has been established in 1971 and it works for different types of pollution like marine pollution, pollution in some forest area. ठीक, या जो आपके पास, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पैसिफिक में काम करता है, तो अमेरिका में भी बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में ये काम करता है. ठीक, तो इसमें we should write it down. Greenpeace is an international organization. Greenpeace is an international organization which is working in more than 40 countries, which is working in more than 40 countries, which includes it is intercontinental, international भी आप इसे बोल सकते हैं, intercontinental, like which includes Europe, America, Asia and Pacifics and Pacific. It has been campaigning against environmental degradation. It has been campaigning against environmental degradation since 1971, means since its inception, since 1971. It was established by some journalists who were working like volunteers. It was established by some journalists, patrakar, journalists who were working like volunteers. And the reason of foundation of Greenpeace was Nitish Kumar Singh, do you want to say something? You must have listened about a place. It is Alaska.
America. Yes, America. And previously it was in the territory Russia. of yes, USSR, Russia. So Russia has handed over it to USA, and it is almost no man's land. That's why Russia has handed it over to USA. But in starting of the decade of 70s, in 1971 and around this period, US was going to test some nuclear explosions. Their nuclear weapons were being tested in this area, that is Alaska. And उसके बाद ही ये एजिटेशन शुरू हुआ था, और फिर ये इसने इट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड. उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया. यू नो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव सम टेस्ट रेंज. लाइक इंडिया, दे टेस्ट देयर न्यूक्लियर वेपन्स इन पोखरण. ऐसे ही पाकिस्तान करता है बलूचिस्तान में. There are several countries which test their weapons, or basically especially nuclear weapons, when there is no man's land. नो मैंस लैंड. तो वहां पे क्या था कि वहां पे भी कुछ कुछ आपके पास क्रिएचर्स रहते हैं. वहां पे कुछ क्रिएशंस हो रहता है पहले से, ठीक. लाइक अलास्का में अपना एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है. तो वो इसको डैमेज करता है, क्योंकि अब देखो इंसान की फितरत होती है, द ह्यूमन हैज अ टेंडेंसी कि दे हार्नेस द नेचर और द रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर कन्वीनियंस, बट दे डू नॉट गिव एनीथिंग इन रिवार्ड. वो रिवार्ड में कुछ नहीं देता है, ठीक. तो सेम थिंग वाज बीइंग देयर, क्योंकि वो फिर हमें क्या करना है, आवर प्राइम एम वाज टू टेस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स. उसके अगेंस्ट इन सब लोगों ने आवाज उठाई थी, एंड इट वाज द लेइंग फाउंडेशन, इट वाज द लेइंग स्टोन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन पीस. और आज की ये बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन अभी बन चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया, विच वर्क्स इन मोर देन 40 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक. तो इट आगे लिखना है इसमें, इट वर्क्स on various it works against various kinds of pollutions. Greenpeace works against various kinds of pollutions, such as marine pollution, which is caused due to accidents and illegal discharge of oil tanks. आपको पता होगा जितने भी आपके ऑयल रिग्स होती हैं, दीज आर सिचुएटेड नियर बाय सी कोस्टल एरिया के आसपास ही वो सब रहती हैं, ठीक. तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि वाटर का ऑयल का उसमें स्पिलेज हो जाता है, ऑयल गेट्स डिस्चार्ज एंड इट हार्म्स द सी और ओशन इकोसिस्टम, ये उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक. इन इंडिया में भी आपको पता होगा, द फर्स्ट ऑयल रिग इज इन बॉम्बे हाई सी में ही है वो, इन अरब सागर, अरेबियन सी. तो उनके अगेंस्ट ये काम करता था, या करता है, अभी भी करता है. क्या लिखा आपने? व्हाट वाज द लास्ट लाइन? Illegal discharge of oil tanks in marine ecosystem. ठीक. It also involves in campaigning. Against industrial discharges from
various kinds of waste which is due to seed dumping operation, operations, mining, or other radioactive discharges. जितना भी कचरा होता है, it finally moves towards seas or oceans. और क्या बोला मैंने? माइनिंग, सी के आसपास या किसी रिवर के आसपास जो माइनिंग करते हैं, वहां से आपके जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, उन सब एक्टिविटीज का भी जो ओवरऑल इफेक्ट जाता है, इट रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स सी और ओशियन. ठीक. और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, आपको पता होगा जो जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, दीज आर बरीड वेदर इन सम डीप सीज और इन सम एरियाज लाइक इन इंडिया, थार जो डेजर्ट है जहाँ पे कि आदमी नहीं होते, नो मैंस लैंड, उस टाइप की जगहों पे ये इसको डाल दिया जाता है. क्योंकि हमने क्या किया है कि ह्यूमन लाइफ को आपने अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखा, और आपने जितने भी बाकी क्रिएचर्स हैं, इन सब के बारे में आपने सोचा ही नहीं. ठीक है. तो इस सब वजहों से जो जितना भी मरीन पॉल्यूशन होता है, उस मरीन पॉल्यूशन के अगेंस्ट ये काम करता है ग्रीन पीस. यस, नॉट ऑडिबल धीरज. आवाज नहीं आ रही, चैट में लिख दो. Okay, just move to next. The second organization is Center for New American Dreams. The second one is Center for New American Dreams. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. I am writing it here on also. Center for New American Dreams. ठीक. अब आप देखेंगे ये जो दो के हमने अभी नाम लिए, वेदर इट वाज ग्रीन पीस और द सेकेंड वन, दीज आर ओरिजिनेटेड इन यूएस, इन अमेरिका. अमेरिका में ही इन दोनों का इंसेप्शन हुआ है. क्यों? बिकॉज आप बोल सकते हैं कि यूएस और अमेरिका, इट इज मोर डेमोक्रेटिक, ज्यादा डेमोक्रेटिक है वो, इसलिए वहां पर ये सब काम हो जाते हैं. जाके वहां से जितने भी ये एनजीओज बने हैं, वो सब आप बोल सकते हो कि काफी फेमस हो गए, और दीज आर वर्किंग डोमिनेंटली. ये डोमिनेंटली काम कर रहे हैं. चलिए, सेकेंड इज सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन ड्रीम. इट वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन यूएस, और इसकी जो फाउंडेशन ले की गई थी, इट्स फाउंडेशन वॉज लेड इन 1997. द सेंटर ऑफ, लिख लेना इसमें, द सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन ड्रीम्स, Center for New American Dreams was founded in US in 1997. In 1997,
its main aim was to raise awareness against hyper consumer culture, against hyper consumer culture. कोई बता सकता है व्हाट इज दिस, व्हाट इज हाइपर कंज्यूमर कल्चर? एनीबॉडी? पर्टिकुलर चीज को इतना जल्दी से कंज्यूम कर लेना को बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाए। किस, क्या बोल रहे हैं देवेश? किसी रिसोर्स को सर बहुत जल्दी सर कंज्यूम कर लेना कि वो एग्जॉस्ट हो जाए सर, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ईच एंड एवरी यू कैन से प्रोडक्ट। ठीक, तो हाइपर कंज्यूमर कल्चर क्या होता है? लाइक इन इंडिया इट इज, दिस कल्चर इज ग्रोइंग नाउ ऑनवर्ड्स, ये अभी ग्रो कर रहा है। ठीक है, थैंक्स टू दिस सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन हुई है, इन दिस वी हैव स्टार्टेड लिविंग इन सम ऑप्टिमम मैनर। हाइपर कंज्यूमर कल्चर क्या होता है? जैसे अगर मैं इसको नॉर्मली आपको समझाना चाहूंगा, जो अभी इंडिया में आपने देखा होगा, पहले हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू रिलाई ऑन सम शॉप्स, नियर बाई शॉप्स जो आपके अड़ोस पड़ोस में हुआ करती थी। अब हम करते हैं देयर इज अ मॉल कल्चर। वहां पर क्या होता है, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने वो सब दिखाया गया है। ठीक, दिस इज बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम यूएस, एंड यूएस से शुरू हुआ था, देन इट केम टू यूरोप, एंड ग्रेजुअली इट स्टार्ट कमिंग टू द ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया। वहां पर क्या होता है कि आप जब चले जाएं एंड योर परचेजिंग पावर इज मोर, तो यू स्टार्ट कंज्यूमिंग और शॉपिंग सम थिंग्स विच इज एट लीस्ट प्रायोरिटी फॉर यू, जो कुछ कम प्रायोरिटी की हैं बट आपको लगता है कि हाँ ले लेते हैं, इस टाइप का। तो होगा क्या कि हाइपर कंज्यूमर में क्या होता है कि अगर आप ने उसे लिया है, इफ यू हैव परचेज इट, तो यू विल हैव अ टेंडेंसी टू कंज्यूम इट ऑल्सो, आप उसको कंज्यूम भी करेंगे। ठीक, तो अब होगा क्या, जैसे जैसे आपने चीजों का कंजम्पशन बढ़ाया, विल इट इंक्रीज योर लाइफ क्वालिटी और डिक्रीज? जो लाइफ की क्वालिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज। इंक्रीज इफ यू कंज्यूम मोर। इट विल इंक्रीज और इट विल एड अप इन क्वांटिटी, नॉट इन क्वालिटी। ये क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी नहीं। ठीक है, लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डिश। आपके सामने मैंने एक डिश रखी और एक थाली रखी है जिसमें यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, या मैं कहता हूं कि सपोज मेरे पास, आई हैव अ रेस्टोरेंट, मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, एंड इन माय रेस्टोरेंट देयर इज अ बुके, बुके है बहुत सारी चीजों का, और मैं कहता हूँ कि आई हैव, जैसे होता है बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, देयर इज अ स्पेशल प्लेटर, एक थाली होती है बड़ी सी, और मैं कहता हूँ कि इट कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज, वो 200 रुपीज की है, एंड उस प्लेटर में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें रख दी हैं। ठीक है, तो अब दूसरी चीज, एक और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि यू कैन कस्टमाइज समथिंग। तो you may be in need of that thing, और your mind, your heart, जो भी आपका दिल दिमाग है उस समय चाहता है कि मैं उस चीज को कंज्यूम करूं, बट मैंने आपको ये बुके पकड़ा दिया इस तरीके से। तो you cannot concentrate on consuming one thing। आप क्या करोगे फिर? आपके दिमाग में वही चल रहा होगा कि आई हैव पेड मोर, आई हैव पेड मोर। तो वहां पर फिर आप क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे नहीं। ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। या देयर वाज वन मोर कल्चर इन यूएस, अभी भी है वो, आपने इफ यू हैव सीन सम मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, तो वहां पर व्हाट काइंड ऑफ कार्स दे ड्राइव? दे ड्राइव मिनी ट्रक्स। वो मिनी ट्रक्स लाइक कार्स जो चलाते हैं, जैसे अभी इंडिया में भी वो फैशन कुछ आया है अभी, जैसे इंडिया में टाटा ने भी निकाला था टाटा जेनॉन, और आईसुजू का एक आया डी मैक्स, वो भी ऐसी गाड़ी है। इट इट हैज 5 सीटिंग कैपेसिटी एंड सम पेलोड बिहाइंड दैट, उसके पीछे कुछ पेलोड भी होता है। वो मूवीज में आपने देखा होगा, वो बोलते भी हैं जस्ट आई एम पिकिंग माई ट्रक, जस्ट टेक आउट माई ट्रक, ऐसे बोलते। तो होगा क्या कि जो उस व्हीकल का जितना ज्यादा आपके पास साइज होगा,
उतनी ज्यादा उसकी इंजन कैपेसिटी होगी, और जितनी ज्यादा उसकी इंजन कैपेसिटी होगी द मोर फ्यूल इट विल कंज्यूम, एंड द मोर फ्यूल इट विल कंज्यूम द मोर इमिशन और द मोर एग्जॉस्ट इट विल क्रिएट, वो ज्यादा एग्जॉस्ट वहां पे क्रिएट करेगा। तो ये टेंडेंसी थी वहां पे यूएस में, और ये चलती ही थी ये बहुत, और काफी हद तक इसमें जो कमी आई है इट इज डिमिनिश्ड इन 2008 आफ्टर द स्लम्प ऑफ 2008 के स्लम्प के बाद इसमें कमी आई है थोड़ा सा, अदरवाइज उनका यही कल्चर चलता है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या करते थे कि ज्यादा कंज्यूम करते थे, और अभी भी उनके पास वो टेंडेंसी है यूएस में। आपने देखा होगा ना, दे जस्ट कैप्चर समटाइम सीरिया, समटाइम ईरान, कभी किसी को, इसीलिए बिकॉज दे हैव टू फुलफिल देयर विशेस, वो इस तरह की सारी विशेस उन्हें करनी होती हैं, जैसे ऑयल उसके लिए उनको करना है, उसके अगेंस्ट ये करता था। ठीक है, उसके अगेंस्ट ये काम करता था। ठीक, मैंने क्या बोला, रेज अवेयरनेस अगेंस्ट। एलिश, यू वांट टू शेयर समथिंग, कुछ कहना है आपको? यस सर, इसमें सर एक मतलब कि एक तरह का सरकाज़म भी हो सकता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यू अमेरिकन ड्रीम्स, और जो अमेरिकन ड्रीम होता है वो मनी और कंज्यूमर हाइपर कंज्यूमरिज्म की तरफ ही होता है ना, तो वो एक सरकाज़म भी हो सकता है कि ये एक नए तरीके का वो डेवलप कर रहा है अमेरिकन ड्रीम। हाँ, सरकाज़म नहीं है, सच है ये तो। यस सर, ठीक है, सच है ये। और अगर अमेरिकन में ये हाइपर कंज्यूमेबिलिटी या हाइपर कंजप्शन की उनके पास टेंडेंसी ना होती तो बहुत सारी समस्याएं तो दुनिया की ऐसे ही खत्म हो जाती। ठीक है, चलिए मैंने लिखवाया कि दे रेज अवेयरनेस अगेंस्ट हाइपर कंज्यूमर कल्चर। ओके, ठीक। इट फोकसेस ऑन, इसके आगे लिखना, इट फोकसेस ऑन the connection between consumption of goods, it focuses between the consumption of goods and quality of life, taking the environmental issues in mind or in consideration. It focuses on connection between consumption of goods and quality of life, taking consideration of environmental issues as more the consumption of goods, if more the consumption of goods will occur, more hazard to environment will be there, more hazard to environment will be there। ठीक है, देखो आपको ज्यादा चीजें कंजप्शन करनी है तो क्या होता है कि फिर आपको उसकी पैकेजिंग मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो इस वजह से वो क्या होता है एनवायरनमेंट पे वो इनडायरेक्टली भी इफेक्ट डालता ही है। लास्ट पैराग्राफ बोल दीजिए। है जी, लास्ट पैराग्राफ से कहाँ से छूटा आपका? सर कंसीडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यू as more consideration of goods. environmental issues as more consumption of goods will result in more hazard to the environment। यही शायद मैंने बोला था, more hazard to environment, यही बोला था अदिति? Yes sir। ठीक, वो थोड़ा सा वर्ड्स में इधर उधर हो सकता है बिकॉज वो No sir, the statement was the same, more hazards Exact. to the environment। Yes। okay ठीक, like I'm taking an example in perspective of India। अभी देखिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो कंजप्शन होता है, आपने सुना होगा देयर इज अ टर्म इन मार्केट विच इज नोन एज, सुना है ये नाम, FMCG? हैव यू हर्ड? किसी ने नहीं सुना है? एलिश? नो सर। नो। अमन रावत? कोई भी ऐसी, मैं रैंडमली नाम पूछ रहा हूँ। राहुल कांत सिन्हा? नो। इट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, और समटाइम्स वी कॉल इट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जितने भी आपके पास तेल, शैम्पू, साबुन,
पेन, ये सब चीजें होती हैं जो डेली नीड की होती हैं, और लाइक नाउअडेज कॉस्मेटिक, ऑल द कॉस्मेटिक्स थिंग्स, द टॉयलेटरीज, दे कम अंडर दिस कैटेगरी, वो इसके अंदर आता है। सबसे ज्यादा इन्हीं का इस्तेमाल आप करते हैं, टूथपेस्ट और ये सब ऑल थिंग, ये सब इसमें आते हैं, तो सबसे ज्यादा इन्हीं का कंजप्शन होता है। तो अब दूसरी चीज क्या होती है कि दीज कम इन स्मॉल पैकेट्स, ये छोटी छोटी पैकेट्स में आती हैं। जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में क्या होगा, एक तो अंदर से पैकेजिंग है, उसके बाद बाहर से भी आपको गत्ता चाहिए, और उस गत्ते के अगर आपने 12-13 कर्टन बनाए हैं तो उसमें फिर से आपने एक पैकेजिंग बनाई है, ठीक। और आजकल क्या हो गया है कि वी थिंक दैट इफ द थिंग the material which is packed inside is more resistant to air or it is evicted from air, आप इसे हवा से बचा रहे हैं, तो there is a chance कि ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा आजकल पैकेजिंग आ रही है सब प्लास्टिक्स की, ठीक है। तो इन इंडिया देयर आर सम गवर्नमेंटेड बॉडीज, आप यू मस्ट हैव लिसन अबाउट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पीसीबी इज देयर, it is nationwide and works at state wise also. तो there is a company in working in FMCG, सबसे ज्यादा जो इसमें काम करती है, आपने नाम सुना होगा, that is HUL, पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर उसे कहते थे, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था, देन इट इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनिलीवर इज द अमेरिकन कंपनी, उसकी इंडियन सब्सिडियरी है ये, सबसे ज्यादा चीज उसी की मिलती है, वो देखा होगा आपने, यू बना हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। एक और कंपनी अभी इसमें बहुत जल्दी, बहुत तेजी से उसने राइज किया है पिछले 2-3 साल के अंदर, इट इज पतंजलि। पतंजलि सुना होगा सबने नाम। तो पतंजलि हैज बीन फाइंड बाय एनजीटी फॉर दिस पैकेजिंग लाइक एक्टिविटीज, ये जो पैकेजिंग लाइक एक्टिविटीज है इनकी वजह से उसको फाइन किया गया है, ठीक। तो दिस इज द एग्जाम्पल कि वही हाइपर कंज्यूमर जो कल्चर जिसमें अमेरिका में 1997 में जिसके अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, वो इंडिया की तरफ अभी मूव करने लगा है, ठीक। आई थिंक दिस इज इनफ, ये इसके लिए काफी है। द अनदर एनजीओ, एक और एनजीओ है यहाँ पे, उसका नाम आप सबने सुना होगा, इट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। द थर्ड वन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, मैं यहाँ पे नाम लिख भी रहा हूं। ये आपने देखा होगा, ये WWF जो है ये इंटरनेशनल एनजीओ है, इंडिया में भी काम करता है, WWF इंडिया के नाम से, उसका एक लोगो है, उसका लोगो देखा है आपने? पांडा। पांडा देखा है ना? हाँ, यस एग्जैक्टली, वही है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जितने भी आपके, ये ग्लोबली काम करता है, और जो लोकल ग्लोबल जो आपके कुछ आप बोल सकते हो कि एनिमल्स हैं, या उन एनिमल्स का जो कुछ इकोसिस्टम है उसके अगेंस्ट, और उसमें हम जो कुछ अगर लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, उसको सेव करने के लिए काम करता है। लाइक WWF इसने इंडिया में शुरू किया था जो काम, इट वाज स्टार्टेड इन मानस अभयारण्य, मानस सेंचुरी इज देयर इन आसाम, गेंडों के लिए फेमस है वो, राइनोस के लिए, इंडियन राइनो होता है ना वो, वन हॉर्न, एक सिंग वाला, तो उसके अगेंस्ट जब वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई थी, लोग उसे मार डालते थे गेंडे को, फॉर सम फ्लैश तो नहीं खाते उसका, बट उसका जो सींग होता है, हॉर्न जो उसका रहता है, ठीक, और बेसिकली हॉर्न नहीं है, इट इज सम नेचर ने कुछ बनाया है उसको, इट इज ग्रुप ऑफ हेयर एंड फ्लैश और ब्लड से जम के वैसा बन जाता है, वो दवाइयों में उसको इस्तेमाल किया जाता था, स्पेशली इन चाइनीज और मंगोलियन, उस ट्रेंड में ये रहता था, तो उन सब में इसने काम किया था, और अब ये सभी पे काम करता है। इट हेल्प्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टाइगर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज एलिफेंट। आप अगर कभी किसी सेंचुरी या किसी नेशनल पार्क में आप विजिट करने जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट लोगो जो आप अभी बता रहे थे, उस लोगो को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। इसमें लिख लो, इसमें WWF, this is one of the world's leading organization which are working in environment protection, which has its roots in Netherlands, और हॉलैंड भी बोलते हैं उसको,
इन नीदरलैंड्स और हॉलैंड, डच है ये, डच था ये बेसिकली। इट इज नाउ स्प्रेड more than 100 countries around the globe. It is now spread in more than 100 countries around the globe, which has a unique way, of working, for flora and fauna in scientific and sustainable manner, so that the needs of people and nature, as well as nature can be met out. ठीक है, तो ये 3 बेसिकली हैं, अदरवाइज बहुत सारे आप अगर देखेंगे तो कई मिल जाएंगे आपको, बट ये 3 मेन हैं जो थ्रू आउट वर्ल्ड काम करते हैं। इसके अलावा और भी एनजीओ हैं, जैसे पीटा का आपने नाम सुना होगा, बट उसको मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ, उसको मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, वो बेसिकली एनिमल्स के लिए रहता है। तो वो चाहे आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो सभी के लिए काम करता है। आपने सुना होगा इसका नाम, ऐसे लिखते हैं वो, पी कैपिटल और ई स्मॉल, सुना है इसका नाम? ये ज्यादा इसमें क्योंकि बहुत सारे सोशल सेलिब्रिटीज और सोशलाइट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव लिसन अबाउट इट, इसके बारे में आपने सुना होगा। इट इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट अगेंस्ट एनिमल, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ये है इसका फुल फॉर्म। तो ये मेनली काम करता है जैसे कि जो एनिमल्स हैं उनको किल करते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड एज वेल एज फॉर द सेक ऑफ क्लोथिंग, इन सब के अगेंस्ट उसके लिए काम करता है पीटा। तो आप इसे मान भी सकते हैं, और वैसे इसको नहीं शामिल करना चाहिए क्योंकि ये बेसिकली एनिमल्स के लिए काम करता है, तो इसलिए उसको मैं इसमें तो आई विल नॉट रिफर इट इन इंक्लूडिंग दिस, इसमें मैं इसको नहीं शामिल करना चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल गो थ्रू दिस सेक्शन। इंडिया में भी बहुत सारे हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है, दैट इज टुमारो, कल क्लास है ना।